Good morning, children. Children, in the previous tutorials, we had discussed about banking services and e-banking facilities. Let's now discuss the other type of business service, which is insurance. We have read in the previous units that business may suffer a number of business risks. There are a number of business risks which a business enterprise may suffer. There may be losses of the goods, there may be losses of the property, the building, or the inventory of the goods. That too may get lost due to fire or due to some natural causes like floods, like earthquake. So these kind of risks can be covered, they can be protected, they can be like the financial losses, they can be made up by insurance company. So this service is very important for a business enterprise because it is a way of risk management, and it protects the financial losses. So this we already know that how do insurance companies work. We have to pay some consideration which we call as premium. So that has to be paid to insurance companies on a regular basis. We fix the term. It either has to be paid in lump sum, one time payment we have to make. एक दोनों पार्टीज़ के बीच में जो इंश्योरेंस करा रहे हैं और जो इंश्योरेंस कंपनी है, these two parties they make a contract जिसमें they will specify all the terms and conditions, how much amount has to be insured, कितने अमाउंट का करा रहे हैं इंश्योरेंस, कितने टाइम के लिए करा रहे हैं, what is going to be the payment of premiums that will be paid at one time, a lump sum amount to be paid in at one time, or it has to be distributed into number of number of installments paid on monthly basis or half yearly basis or yearly basis. So all these terms and conditions are settled between both the parties, and the person who buys the policy, buying the policy means a contract which we call as an insurance policy. So the person who buys this insurance policy or makes a contract with insurance agency is known as insured, and the जो company है that will be called insurer. So this much we already know that how insurance is done, कि हम प्रीमियम पे करते हैं, एक जो हमारा अमाउंट फिक्स होता है उस अमाउंट पे हमारे इंस्टॉलमेंट्स बनते हैं विच आर टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, and if we ever suffer any kind of loss, then the insurance company will make up our financial loss. So this is the basic concept of the insurance. Now how do insurance companies, they generate the funds to pay for the losses, to pay for financial losses? So this insurance is basically a means of spreading risks, and it involves pooling of risk. What is pooling of risk or spreading of risk? क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज दे मेक नंबर ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस करते हैं, एंड एवरी मेंबर पेज अ सर्टेन प्रीमियम ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो देयर that is how they pool up these funds. And if any of those, it's not necessary that all of them are going to meet any unfortunate circumstances, but if any of them, or if जितने लोगों को भी अगर किसी तरह का financial loss होता है, तो जो सारे लोगों से जो कलेक्ट किया हुआ है वो उनका financial loss मेकअप करने के काम आता है. This is the basic procedure of getting our insurance policies and the working of insurance companies. So let's see the definition of insurance. Insurance is a form of risk management and a means of protection from financial loss. An entity, insurance company, it is an entity which provides insurance, is known as an insurer, insurance company, insurance carrier, or underwriter. These are the names by which we can address an insurance company or the party which we are making a contract with: insurer, insurance company, insurance carrier, or underwriter. Now another thing is,
that I mean, our goods which have to be insured, there is a certain criteria. Uh, there are certain situations under which our property or our life can get insured. हर situation में ऐसा नहीं हो सकता. Suppose आप you are running a business firm and you make an insurance plan and insurance contract with any insurance agency. So there are very specific situations under which the insurance company is going to make up your financial losses. अब वो क्या हो सकती हैं? दे मे बी नेचुरल कॉजेज़, फ्लड्स की सिचुएशन में अर्थक्वेक होता है जिसकी वजह से आपका सारा बिल्डिंग आपकी जिसमें आपकी बिजनेस फर्म इस्टेब्लिश आपने की है वो ख़राब हो जाती है, उसको डैमेज हो जाता है, या जो गुड्स आपने वहाँ पर बना के रखे हुए जो प्रोडक्ट्स है आपके वो उसको डैमेज हो जाता है. और इफ़ द बिल्डिंग कैचेस फायर, योर प्रॉपर्टी गेट्स लॉस्ट, दैट मे बी अ रीज़न, और ड्यू टू फ्लड्स your property, your business firm may get lost. So under these circumstances, insurance company can make up your financial losses. They can pay your financial I mean all the money which is required to make up for your financial loss. So but some other situations may also be there for which your business firm may be suffering a loss. जैसे अगर कभी कुछ ऐसा होता है, हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. इफ़ देर इज़ अ रिस्क ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन द फैशन, और ड्यू टू सम गवर्नमेंट पॉलिसी. सपोज़ आप कुछ ऐसा किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऐसा आपका प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें क्या होता है कि ड्यू टू सम रीज़न इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स ऑन टाइम, सो यू हैव I mean an inventory of the product which do not reach to the market on time, and then the fashion changes, so your product are not in demand now and you are suffering a loss. तो इस तरह की चीज़ों के लिए कंपनी इंश्योरेंस नहीं करेगी. ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सामान रखा है, आपने इंश्योरेंस उस सामान का करा रखा है, तो अब आप सोचें कि अगर अब मेरा सामान बिक नहीं रहा है तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. नो, that will not be possible because that is some different type of situation. Similarly, technology changes very fast, so if your products they involve I mean old technology. Now the technology has changed. जैसे मोबाइल फ़ोन्स में हम देखते हैं कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं. तो अगर आपका प्रीवियस कोई आपके पास स्टॉक पड़ा है 2G और 3G वाले आपके पास मोबाइल फ़ोन्स का आप कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, और उस टेक्नोलॉजी के आपका पास सामान पड़ा है, तो दे विल नॉट बी इन डिमांड नाउ बिकॉज पीपल विल गो फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. They will go for 4G now, even for 5G. So why would they buy your 2G and 3G phones? So that all those goods which you have in your stock, I mean that will be an absolute loss for you. So no insurance can be made for such type of goods. In such situations no insurance can be made. तो इंश्योरेंस हमारे जो सामान होता है वो दो तरह का होता है, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल. किस सिचुएशन में उसका हम इंश्योरेंस कर सकते हैं और किस सिचुएशन में इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं होगा, हमें उसका कोई रिफ़ंड या उसका हमें कुछ फिनेंशियल हमारा मेकअप नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा लॉस का. सो हम इस तरह हमारा क्या होता है, इंश्योरेबल रिस्क एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क. नाउ लेट्स go further and let's study the principles when there is a contract, a written contract between the two parties, the insured and the insurance, then certain principles have to be followed. बहुत एक laid down principles रहते हैं जो कि बहुत clearly stated होते हैं and which have to be strictly followed. One such principle is principle of utmost faith. Both the parties, the insured and the insurer, they make an insurance contract in utmost faith, utmost good faith. दोनों को एक जो होना चाहिए वो दोनों का फेथ होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ का एक दूसरे में.
the the insured should never conceal or should never reveal any material fact. आप किसी चीज़ का, सपोज़ आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, तो उसमें यू हैव टू प्रोड्यूस ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू योर हेल्थ वेरी क्लियरली. अपनी एज का, अपना आपके हेल्थ का जो है वो बहुत क्लियरली सारे चीज़ें, सारे जो फैक्ट्स हैं वो पार्टी से आपको ओपन करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि somebody is suffering from some terminal disease, but that person makes a contract with the insurance और वो उसको ये छुपा ले जाता है इन सारे फैक्ट्स को, ये सोचकर कि ठीक है मेरी भाई मुझे ये डिज़ीज़ है, कुछ टाइम बाद मेरी डेथ हो जाएगी, तो एटलीस्ट मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी से इतना पैसा मिल जाएगा. तो ये एक तरह की फॉर्जरी होगी. तो आई मीन दिस शुड नॉट be done. This contract should be made in good faith, and similarly the insurance company should also never reveal any kind of facts which may be disadvantages for the insured person. कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी पॉलिसी अपनी सेल करनी है तो सारे उसके अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी, और कहीं कुछ ऐसा है जो आगे जाकर ध्यान रखना चाहिए. जो अपना इंश्योरेंस करा रहा है उसको वो चीज़ें भी पता होना चाहिए कि अगर मैं कहीं लाइक विड्रॉ करता हूँ, इफ़ आई एम नॉट एबल टू पे द प्रीमियम, तब क्या होगा, मेरा जो प्रीमियम मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ वो मुझे कैसे उसका पैसा वापस मिलेगा. ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स बहुत क्लियरली इंश्योरर को भी बताना चाहिए, ताकि आगे क्या सिचुएशन होगी उसमें द पर्सन इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड दैट हाउ कैन ही सिक्योर हिज इन्वेस्टमेंट. जो इन्वेस्ट किया है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उसका क्या रिफ़ंड का क्या प्रोसीजर होगा, वो सारी चीज़ें भी बहुत क्लियरली बताने चाहिए. ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा बताया जा रहा हो, और अगर फॉर एनी जेन्युइन रीज़न इफ़ द पर्सन विशेस टू टर्मिनेट दिस पॉलिसी, तो उसका सारा लॉस हो जाए, तब इंश्योरेंस कंपनी कह दे कि भाई हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही ये चीज़ लिखी हुई थी कि आप अगर विड्रॉ करेंगे तो आपका सारा वो जो है फॉरफीट हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें भी बहुत क्लियरली इंश्योरर को भी बतानी चाहिए. सो दे बोथ शुड बी इन अटमोस्ट गुड फेथ. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ principle of insurable interest. The person going to sign a contract with the insurer should have insurable interest in that thing. अगर कोई किसी चीज़ का करा रहा है तो उसके लिए that person should have some pecuniary value, उसकी कुछ financial value होनी चाहिए, उसका कुछ financial stake होनी चाहिए. The insured must have a pecuniary interest or a financial stake in the subject matter of the contract of insurance. This means there should be a reasonable concern of a person to obtain insurance for an individual or property against unforeseen events such as death or loss. अगर कोई किसी का इंश्योरेंस करा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं या गुड्स के इंश्योरेंस करा रहे हैं, अपने किसी सामान का, अपनी प्रॉपर्टी का, पीपल गो फॉर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट of insurance for their house, for their car, for their other things, their business enterprise, their inventory, their goods, किसी भी चीज़ का अगर करा रहे हैं तो दैट शुड हैव सम पेक्यूनरी इंटरेस्ट. अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स मे बी वेरी प्रेशियस, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन, दे आर देयर इज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ दीज पीपल. लोगों का उसकी एक वैल्यू होती है. अब दूसरे की लाइफ, आप अपने पड़ोसी का तो इंश्योरेंस नहीं कराएंगे या ऐसे ही किसी भी XYZ का नहीं कराएंगे, बिकॉज़ वो लाइक एक इमोशनल वैल्यू अलग है, बट उसका एक कुछ होना चाहिए कि उसका लाइफ में आप उस चीज़ का आपके लाइफ में कुछ मतलब है. अगर वो नहीं होने से आप एक तरह का लॉस फील करेंगे, आपके लिए एक लॉस हो जाता है उस चीज़ का आपकी लाइफ से हटने का, वो तभी आप इंश्योरेंस कराएंगे. सो दिस इज़ अनदर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, दैट यू शुड हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट. जिस चीज़ का आप इंटरेस्ट करा रहे हो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो. थर्ड इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी इज़ व्हाट? दैट इज़ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ लॉस. सो इंडेमनिटी प्रिंसिपल में क्या होता है? द इंश्योरर would try to
bring you back in your original position which you had before suffering the लॉस होने से पहले या कुछ ऐसा बिजनेस रिस्क आने से पहले आपकी जो फिनेंशियल पोजीशन थी, इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी. दिस इज़ इंडेमनिटी प्रिंसिपल. दैट मीन्स कि अगर आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस 2 lakhs का आपने कराया है, 2 lakhs का अमाउंट फ़िक्स करके आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसके आप प्रीमियम कर रहे हैं, जो भी प्रीमियम फ़िक्स हुए हैं. अब आपकी जो बिज़नेस एंटरप्राइज़ है उसकी जो बिल्डिंग में कहीं फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका कोई एक सर्टेन पोर्शन डैमेज होता है जिसका लॉस अप्रॉक्स 1 lakhs है. सो अब आपको जो ये इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका 1 lakhs का ही आपका आपको पे करेगी. ऐसा नहीं है कि आपकी पॉलिसी तो 2 लाख की थी तो आपको वो 2 लाख पूरे उसके पे करे. जितना आपका एक्चुअली लॉस हुआ है उतना ही आपको पेमेंट उसका मिलेगा. तो आपकी जो जैसे पोजीशन पहले थी उसी पोजीशन में आप वापस आ जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप 2 lakhs का आपने लिया था तो आपको पूरा 2 lakhs का मिल जाए, तो 1 lakh यू स्पेंड टू मेक अप for the damages and 1 lakh you save as a profit. No, indemnity principle says that the insured will be put into the same position after happening of the event in which he was immediately before the event. उस इवेंट से जस्ट पहले आप जिस पोजीशन में थे वापस उसी पोजीशन में आएंगे. ऐसा नहीं है कि आपकी उससे बेटर पोजीशन हो जाएगी क्योंकि आपने और बड़ी अमाउंट का इंश्योरेंस करा रखा था. नेक्स्ट इज principle of contribution. Principle of contribution means when an insurer insures risk. Contribution principle says that when the property is insured for the same risk with 2 or more insurers. अगर डबल इंश्योरेंस आपने करा रखा है, सेम चीज़ का 2 अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है, so the different insurers will contribute to the total payment in proportion to the amount assured by each. अगर आप सपोज़ आपने अपने जो आपकी बिल्डिंग है, दैट मे बी योर हाउस और दैट मे बी योर बिजनेस एंटरप्राइज, उस बिल्डिंग का अगर आपने करा रखा है 2 अलग जगह से, एक से कहीं से आपने 1 lakh की पॉलिसी ली हुई है, दूसरी जगह से आपने 2 lakhs की पॉलिसी ली हुई है. अब आपका वहाँ पर अगर लॉस होता है से 1 lakhs का वहाँ पर लॉस हो जाता है, तो अब वो आपका जो लॉस है वो दोनों इंश्योरेंस कंपनी से कंट्रीब्यूट करके आपका लॉस मेकअप करेंगी. अगर कोई एक उनमें से पे कर देती है, वो जितना भी अब वो एक उसका प्रोपोर्शन सेट हो जाता है कि कितने % आप कौन कितना करेगा. अगर कोई एक कंपनी पूरा कर देती है तो वो दूसरी कंपनी जो है वो सर्टेन % उसे पे करके उस जो जो आपका फिनेंशियल लॉस पे किया है कंपनीज़ ने वो उसको मेकअप करेगी. जो आपको वो पे कर रही हैं वो दोनों इंश्योरेंस कंपनीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करके आपको वो फिनेंशियल आपका अमाउंट पे करेंगे. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. सब्रोगेशन प्रिंसिपल सेज दैट इफ व्हेन द insurance companies compensates for your loss, then the property which has been damaged or which has been lost, that will belong to them. सपोज़ आपका कार का इंश्योरेंस हुआ है, कार का एक्सीडेंट होता है और वो इंश्योर्ड है आपकी कार, तो इंश्योरेंस कंपनीज आपके उस लॉस का पेमेंट करेगी. आपका जो भी उसमें उसको रिपेयर कराने का जो भी आएगा कॉस्ट, वो सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. अगर आपकी पूरी कार पूरी डैमेज हो चुकी है तो उसकी टोटल अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी. अब अगर टोटल अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे कर दी है तो उसके बाद वो जो डैमेज्ड कार है आपकी, वो डैमेज कार विल गो टू द इंश्योरेंस कंपनी. ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरा पेमेंट भी ले लिया, अब आप सोचें कि चलो ये जो डैमेज कार है इसका मैं कुछ और यूज़ कर लूँ, इससे किसी और तरह इससे कुछ वैल्यू गेन कर लूँ, उसको सेल ऑफ कर दूँ, इसको स्क्रैप में करके उससे भी पैसा ले लूँ. नो, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल बिकॉज आफ्टर मेकिंग पेमेंट द इंश्योर्ड is compensated for the loss suffered by him.
which he has suffered the losses, the damages, and he is compensated by the insurer, and after that the insurer steps into his shoes. Steps into his shoes means कि उसकी जो सामान है या जिसकी जो चीज़ है वो उसकी जगह इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी. Next is principle of mitigation of loss. Mitigation is what? It is reducing risk of loss. Now what this principle says, अब आपने किसी अपनी प्रॉपर्टी का, अपने बिजनेस का, किसी सामान का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, एंड देयर इज़ सम मिस हैपनिंग, कुछ होता है, फायर लग जाती है, तो अब यू हैव टू मेक एफर्ट्स टू मिनिमाइज द लॉस. You will have to make every possible effort. You should call fire brigade so that they can come and control the fire. अगर आप ये सोचते हैं कि इसका ऑलरेडी इंश्योरेंस है, why should I take pain to control this thing? Let it burn, let it get lost because I'll eventually be paid by the insurance company. अगर इस सोच को आप रखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी के पास भी ये चीज़ होती है कि दे हैव देयर टीम टू इन्वेस्टिगेट द मैटर. दे फर्स्ट विल इन्वेस्टिगेट दैट व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय यू फॉर कंट्रोलिंग दिस फायर, फॉर मिनिमाइजिंग द लॉस. अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, अगर उनको ये लगता है कि नहीं ये तो डेलिब्रेट कुछ लग रहा है कि ये सामान इनके अब ज़्यादा यूज़ का नहीं रहा हो, तो इन्होंने इसमें आग लगा दी हो ताकि इनको पूरा पैसा इसका मिल जाए, तो दे विल फॉरफीट दैट पॉलिसी एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड यू विल नॉट बी पेड एनीथिंग. सो दिस इज़ मिटिगेशन ऑफ लॉस प्रिंसिपल. Next comes principle of causa proxima. Causa proxima is a Latin term for proximate cause. Proximate cause का क्या मतलब हुआ कि हमने अगर किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए ली हुई है पॉलिसी, इसका इंश्योरेंस करा रखा है, अब हमारा अगर कुछ हमारा जो डैमेज हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, वो एग्जैक्टली उस कॉज की वजह से नहीं हो रहा है. फायर का अगर हमने कर रखा है तो एग्जैक्ट वो फायर का नहीं हो रहा है, बट अदर रीजंस वर देयर. एक सीरीज़ ऑफ वहाँ पर एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से वो लॉस हुआ. इवेंचुअली फायर अलोन वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल. फायर वॉज कॉज्ड ड्यू टू सम अदर रीज़न विच इज़ नॉट कवर्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी. देन द मोस्ट प्रॉक्सिमेट कॉज विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. और अगर आपका वो कवर्ड नहीं है इंश्योरेंस प्लान में, तो फिर उसका आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. दिस इज़ वॉट इज़ मेंट बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा. सो we'll discuss this topic in the next tutorial. We have more to discuss from this topic. We have to discuss the types of the insurance, different types of insurance plans, insurance policies, that will be discussed in the next tutorial. So this is all for today. Have a nice day.